مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، لمبی حدیث۔ ایک صحابی آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھ سے وہ حدیث بیان فرمائیے جو حدیث آپ نے مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ کیا کہا ہے صحابی نے؟ ابو ہریرہ سے جو حدیث کے زیادہ جانکار تھے، فنکار تھے، راوی ہیں، کہا کہ اے ابو ہریرہ، مجھ سے آپ وہ حدیث سنائیے جو حدیث آپ نے جہاں مدینہ مسجد کو دیکھا ہے، اس مقام کی بات کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے جو آپ نے سنی ہے۔ اللہ اکبر! ہے کوئی مسلمان، ہے کوئی چودھری، ہے کوئی سرپنچ، ہے کوئی ٹھیکیدار کہ امام کے پاس آئے، جانکار کے پاس آئے اور اپنا سدھار پیدا کرے؟ نہیں، سوچ لو، اس سے زیادہ ملے گا نہیں، خدا کی قسم ممبر رسول پر کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنا بھی کرا لو، تکبر کر لو، خدا کے ساتھ مذاق کر لو، علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ مذاق کر لو، لیکن حاصل بس اتنا ہی، تقریر اسی پر ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہیں جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث بیان کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی، میں وہ حدیث سناتا ہوں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی کے اندر ہم نے سنی ہے۔ اب وہ خاکہ، وہ منظر ان کے سامنے آتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بے ہوش کے گر جاتے ہیں۔ بیان کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں، افاقہ ہوتا ہے، پانی پیتے ہیں۔ اتنا مشتاق تھے، جستجو کرنے والے تھے صحابی، کہا کہ ابو ہریرہ، آپ مجھ سے وہ حدیث بیان فرمائیے جو حدیث آپ نے محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنی ہے۔ دیکھیے، بے ہوش میں ہیں، خاکہ آ رہا ہے، پھر سوال ہو رہا ہے کہ حدیث نبی کا۔ کہا کہ سنو، میں سناتا ہوں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تیسرے بار ہوش میں آتے ہیں، فاقہ ہوتا ہے، ہمت باندھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ سنو میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین حساب کتاب کے لیے آسمان دنیا پر آئے گا تو سب سے پہلے ایک عالم صاحب، ایک مولوی صاحب سے حساب لے گا۔ دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا تو سب سے پہلے ایک عالم سے سوال کیا جائے گا، عالم صاحب بتائیے آپ دنیا میں کون سا کام کیے، کیسا کیسا کام کیا، آپ نے ذمہ داری کا احساس کیا یا فوکس بازی آپ نے کر لیا، تنخواہ آپ نے لیا اور لوگوں کو پڑھایا نہیں، بچوں کو نہیں پڑھایا، آپ نے جو ہے لوگوں کو گرفتاریوں میں دیکھا، آپ نے اس کو ٹوکا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک عالم صاحب خلوص سے دعوت کا کام، تحریک کا کام، تبلیغ کا کام نہیں کرتے، مگر یہ کہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو بڑا عالم کہے، بڑا مقرر کہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے عالم کو نہ کیول رگڑتے ہوئے جہنم میں پھینکو جو دنیا میں نام چاہتا تھا، کام نہیں کرتا تھا، خلوص اس کے دل میں نہیں تھا۔ دیکھا، چنانچہ امام و مولانا صاحب ناک کے بل کہاں زمین رگڑتے کھسے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ دوسری نمبر پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب کا معاملہ کرے گا تو ایک عالم سے سوال کے بعد ایک مالدار سے سوال کرے گا، اے مالدار، دنیا میں تم مال اکٹھا کر لو اور اس مال کو پاک اور صاف نہیں کرو، اس مال کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو، تمہارے پڑوسی میں بھوکے لوگ مر رہے ہیں اس کا خیال نہ کرو۔ تو فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے مالدار کو بھی جہنم میں داخل کر دو۔ جی، داخل کیا جائے گا جہنم میں مال۔
आखिर में सवाल होगा एक ताकत आदमी से, बताओ तुमको हमने ताकत दी थी, हमने तुमको जवानी दी थी, हमको तुमको तवानाई बख्शी थी, तुमने इस ताकत को जवानी को कहाँ सर्फ किया? लोग सर्फ करेंगे अगर अच्छी कामों में तो अच्छा जवाब मिलेगा, और नाम और नमूद के लिए करेंगे कि लोग हमको गाजी कहें, पहलवान कहें। सहाबा के जमाने में लड़ाई जहाज जंग होती थी तो रिया के लिए सहाबा लड़ते नहीं थे, बल्कि दीन को बाकी और साबित रखने के लिए अपनी जान और माल को पेश करते थे। नाम पैदा करने के लिए उनका कोई अमल नहीं था। तो मेरे अजीज भाइयों, ये हदीस वो जाकर एक सहाबी से सुनाते हैं, हमारे और आपकी तरह चिपसाद नहीं देते हैं। आप खुतबा सुनते हैं, अपने घरों में जाके आप न बच्चों को आप सलाम करेंगे, ना आप जो है एक खतीब की बात को अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप तक पहुंचाएंगे, ना बीवी को पहुंचाएंगे। आपको फौरन खाना चाहिए, फिर आपको आराम चाहिए, दावत का काम आप नहीं करेंगे। मेरे अजीज भाइयों, साहब कहा कि जब जाकर के अपने एक साथी को सुना दिया कि हज़रत अबू हुरैरा की ज़बान से मैंने ये बात सुनी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में हदीस बयान फरमाई। नाम उनका अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अमीर मुआविया का नाम आपने सुना होगा। अमीर मुआविया ने जब हदीस को सुन लिया कि अल्लाह ताला सबसे पहले आलिम से सवाल करेगा, दूसरे नंबर पर मालदार से सवाल करेगा, तीसरे नंबर पर जवान से सवाल करेगा, तो ज़ारो कतार रोने लगे और ढाले बांध करके रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अकबर, ईमान इसको कहते हैं। सुनते हैं किताब सुन्नत नबी की बात, दावत को, और उस पर पैवस्त करते हैं, तब्दीली पैदा करते हैं। मेरा भाइयों, ज़ाहिर को था, और इतने पर बस नहीं, रोते रोते कहते हैं कि अल्लाह में घास होता, ये अल्लाह में घास होता, ये अल्लाह में तिनका होता, ये अल्लाह में लकड़ी होता, मैं कोई पत्थर होता, मुझसे हिसाब किताब नहीं लिया जाता। मुसलमानों, घास है और दीगर ये चीजें हैं, इनसे हिसाब नहीं। सहाबा अर्ज करते थे, ख्वाहिश करते थे कि घास ही होते तो हमको हिसाब नहीं देना पड़ता। इंसान के साथ हिसाब है, और ये जर्रे जर्रे का हिसाब है। कुरान पढ़ते हैं, जर्रा जर्रा रखती रखती आपसे सवाल किया जाएगा। तो मेरे अजीज भाइयों, सहाबा अपने दिलों में खौफ पैदा करते थे, और इसी खौफ की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में नसीब फरमाएगा। अहबाब इख्वान की गुजारिश है कि इस हदीस में आप अपने दिलों में खौफ पैदा कीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी हदीस समाअत फरमाइए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमानों के दूसरा खलीफा गुजरे हैं, दूसरा खलीफा। एक बार ऐसा मामला हुआ, आज आपके घरों में लड़ाइयाँ होती है ना, आपकी बीवियों में, बेटियों में, माँ बहन, माँ के माँ बहन, नौजवानों के माँ बहन में, जब खाना, अभी तो अफरा तफरी का रोजी का आलम, पहले लोग भूखे मरते थे। सहाबा के जमाने में पत्थर लोग बांधते थे, आज तो अल्लाह ने दे दिया आजमाइश के लिए, इंसान समझ नहीं रहा है, कोई भूखा नहीं मरा। पहले भूखे लोग मरते थे, हफ्तों उनसे खाना अच्छा नहीं मिलता। अज़वाज मुताहरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों के साथ ये मामला आया, परेशानी आई, भूख लायक हो गई, मुतालबा करने लगी नानो नफ्ता का, खर्चा का, कपड़े का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत गरीब इंसान थे, लेकिन मेरे अजीज भाइयों, दीन का दाई थे, दीन का जज्बा। जब जिन्होंने उनको तंग किया आपके बीवियों ने, अज़वाज मुताहरात ने, तो आपने इला कर लिया, कसम खा लिया कि हम बीवियों से अलग थलग रहेंगे। जी, अब 9 बीवियों के गार्जियन आना शुरू किए। आज देखते हैं आपके घर में कोई बेटी पुतो लाते हैं, कोई झगड़ा होता है, पूरी कमेटी, पूरी जमात लोग उठ के आते हैं कि मेरी बीवी से ऐसा किया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी लोग आए, और आने के बाद में सवालात हुए। उनकी सिफारिश के लिए हजरत उमर की एक बेटी, जिसका नाम हफ्सा था, लिखो इसको, हजरत उमर की बेटी एक हफ्सा नाम था, और हफ्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजियत में थी, यानी आपकी बीवी थी। यानी उमर के दामाद नबी और नबी का ससुर उमर।
लड़की का नाम हफ्सा। जब हफ्सा ने देख लिया कि मेरे वालिद मोहतरम आए हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हमारी सिफारिश के लिए आए हैं, औरतों का दिल भूल जाता है। आज भी किसी औरत के नहर से नफरात आ जाए मामला के हल करने के लिए, तो औरत का दिल और सीना ऊंचा होने लगता है और दोनों गलती कर जाते हैं बाप बेटी बाद में। लेकिन कुर्बान जाए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी से फरमाया कि हफ्सा, तुम ये समझ रही है कि तेरा बाप तेरी सिफारिश के लिए आया है। सुनो हफ्सा, हफ्सा सुनो, मैं तुम्हारी सिफारिश के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम लोगों ने तकलीफ दी है, मैं उसके इजाले के लिए आया हूं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म होगा उसी के सामने मैं अपने सर को झुका दूंगा। मेरे अजीज भाई, ये बात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डांटा अपने बेटी को और कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ मत देना। अब जब आप आगे बढ़े, उमर आगे बढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में जाने लगे, तो क्या देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर सोए हुए हैं। न गद्दा है, न मसनद है, न तकिया है, न पलंग है, न पंखा है। चटाई के निशानात आपके जिस्म अतहर पर पड़े हुए हैं। चटाई के निशानात नबी के जिस्म में है। अल्लाह अकबर। उमर कांपने लगे, थरथराने लगे और कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के कैसरो किसरा, दुनिया के बादशाह, दुनिया के बुलंद बादशाह बहुत आराम से हैं और बेहतर कमरे में हैं, बेहतर घर हैं, उनके खाने पीने का अच्छा नज़्म है, और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, आप दाई हैं, दोनों जहान के सरदार हैं, और आपका हाल यह है कि आपके पास न एक बिछौना है, न एक चादर है, न तकिया है, आप सोए हैं चटाई, एक चटाई के निशानात आपके जिस्म पर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, ये कैफियत देकर रोने लगे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हिस्सी बन गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया कि उमर, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? चाहे कि अल्लाह के नबी, आपकी हालत, आपकी कैफियत, आप सरताज हैं, आप जो है दाई हैं, आपका हाल ये है कि आप जिस चटाई पर सोए हैं निशानात जिस्म पर है, और ये दुनियावी बादशाह बहुत ऐशो आराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया था हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, मेरे अजीज भाइयों, सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। कहा कि उमर, याद रखो, इनके लिए दुनिया ही में जन्नत है, और हम ये पिटाई, ये मेहनत, ये कोशिश और आराम से दूर हैं। आखिरत के अंदर हमको जन्नत मिलेगी, और जमीय मुसलमानों को और दीन के ऊपर चलने वाले को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। आप बताओ, तो दुनिया में जन्नत चाहते हो, आखिरत में? हजरत उमर रज़ियल्लाहु खुश हुए और कहा कि आखिरी जिंदगी हमेशा हमेशा जिंदगी में जहां आराम होगा हम वही चाहते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, सहाबा का हाल ये था कि दीन की बात सुनते थे, खौफ खाते थे, दिलों में डर पैदा करते थे, और याद रखिए मेरे अजीज भाइयों, यही डर इंसान को जन्नत में ले जाए। तो जो बात सुनते हो ना किताब और सुन्नत की रोशनी में, उलमा में, तकरीरों में, दरसों में, इज्तिमा में जो बात सुनते हो, उसको अपने जिंदगी में नाफिज करो तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। वरना सुन सुन के खाली बुढ़ा दोगे ना, कल शीशा पिघला करके अल्लाह डालेगा और उस दिन चीखोगे, तड़पोगे, कुछ काम नहीं आएगा। आज जरूरत है कि इंसान खुदा का खौफ खाए, डर पैदा करे, और अपने समाज में अपने अंदर जो गलतियां हैं उसका एहसास पैदा करे। दरबार इलाही में रोए सहाबा, बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, अल्लाह अकबर, और सिर्फ वो जन्नत का मुतालबा करते थे। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया है, हमको जिम्मेदारी दी है कि हम बेहतर से बेहतर खुद काम करें, अपने भाइयों का उसका करने का हुक्म दें, और आपस में अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, मसाजिद मदारिस को आबाद करें, और हर इंसान अपनी जिंदगी को सही ढंग से गुजारने। वो क्या कर रहा है उसका जवाब आपको नहीं देना, आप क्या कर रहे हैं आपको जवाब देना है। ये हम क्या कर रहे हैं हमको जवाब देना है, हम जो करेंगे आपको उसका जवाब नहीं देना है, आप जो कर रहे हैं आपको जवाब देना होगा। मौलाना अब्दुल रऊफ झंडारगी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक तस्नीफ के अंदर फरमाते हैं कि
تبلیغی جماعت کے مرکز سے ایک بڑے عالم یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس جو ذمہ داری ہے تم اپناؤ، تم کو اپنے عمل کا حساب دینا